بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتنا عجیب لگتا ہے یہ سننا، کوئی ایک ہی فن میں بہت امیر ہو گیا۔ بعض کا تو یہ سب محض ایک جھوٹ لگتا ہے، لیکن حقیقت ہمیشہ انسان کے یہ سب خیالات بدل دیتی ہے۔ کچھ لوگ یقین کرنے سے قاصر ہوتے ہیں، مگر یہ سچ ہے۔ ایک بے اولاد جوڑا اس پرانے سے بوسیدہ گھر میں رہتا تھا۔ وقت بدلا مگر اس گھر کی حالت وہی تھی۔ لوگ اس دور میں اپنا رہن سہن نہ جانے کیسے کر رہے تھے، کسی دوسرے کا خیال کون کرتا ہے۔ مگر ایک دن عجیب واقعہ ہوا۔ صبح کے وقت محلے والے کھڑے تھے، لوگوں کا ہجوم تھا، آپس میں چمگوئیاں ہونے لگیں۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ اس رات میں گھر میں دھماکہ ہوا، تو کسی کا کہنا تھا کہ رات کے دوسرے پہر اس گھر کے چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن اس گھر کے مکین کہاں تھے اور کسی نے ان کا ذکر نہیں کیا۔ مگر کیوں کچھ عورتوں کا کہنا تھا کہ اس گھر سے بہت تیز روشنی نکل رہی تھی، مگر کوئی بھی شخص اس ایک بات پر مطمئن نہیں تھا۔ ایک بزرگ جو کہ کافی دیر سے خاموش کھڑے تھے، وہ بولے یہاں جو ہوا اس کو بس ایسا سمجھ لو جیسے قبر کا حال مردہ جانتا ہے۔ لوگوں سے نخورت سے اسے دیکھا اور بولے یہ تو پاگل ہے، اس کو کیا پتا اس عمر میں کم دیکھتا ہے، اور جوان لوگ اپنی منطق بنائے بیٹھے ہیں۔ لیکن یہ بڑے صاحب جتنے لوگ اتنی باتیں، مگر کچھ تھا جو کہ بار بار سب کو اسی گھر کی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ چاہ کر بھی لوگ اس بات کو نہیں بھول پا رہے تھے۔ محلے میں عرصے بعد بھی لوگ وہی رات یاد کرتے تھے۔ وہاں سالوں سال گزر گئے۔ محلے کے کونسلر کے بیٹے کی شادی ایک بہت امیر کبیر لڑکی سے ہو رہی تھی، مگر جب لوگوں نے کونسلر سے کہا اس کی بہو کو دیکھنا ہے، اور لوگ اس بات پر بضد تھے، کونسلر نے بھی کہا میری بہو ایک نیک گھرانے سے تعلق رکھتی ہے اور ان کے یہاں پردے پر بہت زور ہے۔ یہ بات سب کو سب لوگ حیرت سے بولے۔ آج کے دور میں لڑکیاں فیشن کی دیوانی ہیں، مگر ان سب کی اپنی ہی منطق تھی۔ خیر، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں، دن گزرتے گئے، شادی کا دن بھی آن پہنچا۔ لوگ بڑھ چڑھ کر شادی میں جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ بہت کمال کا انتظام تھا، لوگوں کی آنکھیں چندیا گئی تھیں، ایک ایک چیز قابل دید تھی۔ مگر جیسے ہی لوگوں نے دلہن کو دیکھا، بہت سی عورتوں کی آنکھیں ٹھہر گئیں۔ کھانا کھاتے ہاتھ پل بھر کو رکے۔ کیا کیا تھا ان آنکھوں میں؟ ستائش، حسد، جلن، تشکر، قصص۔ بہت سے لوگ اس دلہن کے روم میں افسر کو دیکھ کر جم گئے، مگر اس سب کے برعکس کونسلر کے گھر والے بہت عجیب رویہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ وہ لوگ چاروں طرف بار بار کچھ دیکھ رہے تھے۔ اچانک حال میں اندھیرا چھا گیا اور یکدم حال روشن ہو گیا، مگر پولہار چیخ و پکار، کیونکہ دولہے کا بہت بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا۔ لوگ ڈر خوف سے یہاں سے وہاں بھاگنے لگے۔ اسی ہی اثنا میں ایک عورت نے کہا وہ دیکھو دلہن بھاگ رہی ہے۔ مگر پھر سے اندھیرے نے چاروں طرف اپنا راج کر لیا۔ لوگ سانس روکے اگلی کارروائی کے منتظر تھے۔ چاروں طرف سناٹا سا چھایا ہوا تھا، خاموشی لوگوں کے دل کی دھڑکن کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ تبھی اچانک اس سناٹے کو چیرتی آواز سنائی دی۔ لوگوں کے دل خوف سے اچھل کر منہ کو آ گئے۔ سنو احمق لوگو، ہر شادی دلہن دلہے کی نئی زندگی کی شروعات نہیں ہوتی، کچھ شادی موت کی نوعیت ہوتی ہیں۔ تم لوگ اس واقعے کو تاحیات یاد رکھو گے، مگر ایک لمحہ کو اگر یہاں سے بچ کے نکل گئے تو ہاں لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ کھڑکیاں دروازے پھلانگ کر لوگ جان بچا کر بھاگ گئے۔ سارا وسیع ہال جس میں کچھ دیر پہلے رنگ برنگی روشنیاں تھیں، اب وہاں بس ایک ناش اور ایک دور چھایا کھڑا تھا۔ ان پر اسرار آنکھوں میں ایک بے چینی تھی۔ کافی دن تک لوگ اس واقعے کے بعد اپنے گھروں میں سیم کے چھپے رہے۔ کونسلر اور اس کی بیوی تو جوان بیٹی کی بھیانک موت پر رونے کے قابل نہیں رہے تھے، ان کو سکتہ ہو گیا تھا۔ لوگ اس بارے میں بات تک نہیں کر رہے تھے، یہی ڈر تھا کہ شاید وہ سب پھر سے نہ ہو جائے۔ مگر یہ سب ہوا کیوں؟ دلہا جان سے گیا، مگر دلہن اس کا کیا حال ہوگا؟ وہ بھی تو موت جیسی زندگی گزارے گی۔ کون کرے گا اس سے شادی؟ کون لوگ تھے؟ کوئی جانتا تک نہیں تھا، مگر امیر کبیر بس اتنا ہی یاد تھا۔ اس سے آگے کی سوچ کرنا ہی نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں کے دلوں کی دھڑکن تیز ہو جاتی تھی۔ اس واقعے نے لوگوں کو اندر سے جھنجھوڑ دیا۔ اس بات کو بھی ایک سال گزر گیا۔ کچھ لوگ ابھی بھی کونسلر کے گھر کو دیکھتے تو نم آنکھوں سے اس وقت کو یاد کرتے جب کونسلر اپنے بیٹے کی شادی کی تیاری کر رہا تھا۔ اس کی بیوی تو اکلوتی بہو کے حسن کے پھول باندھ رہی تھی، اس گھر میں کے آفتاب دیکھنے کے قابل تھے، اور ایک سال میں بس ایک سال میں
इस घर को दीमक खा गई। काउंसलर और उसकी बीवी घर के आंगन में तख्त पर बुत बने बैठे रहते थे। कोई बोलता भी तो जवाब नहीं देते थे। उनकी आंखें ठहर सी गई थीं। जवान बेटे को सेहरे में देखने की बजाय कफन में देखकर कौन माँ बाप जी सकते हैं। यही हाल काउंसलर और उसकी बीवी का था। लोग उनके हाल पर अफसोस करते थे, उससे ज़्यादा भी वो कर भी क्या सकते थे। ये सब शायद नसीब था या फिर ये घर किसी अनहोनी का शिकार हुआ था। दूर कहीं गांव में यही शोर था कि दिन ब दिन यहाँ पर एक आदमी बहुत अमीर हो गया। अमीर कबीर आदमी पर लोगों को शक था। सब लोग उनको हैरत से देख रहे थे। एक बच्ची जो कि अपने बड़े से घर के बागीचे में झूले पर बैठी थी, उससे मोहल्ले वाली ने कहा, बेटी तुम लोग कैसे इतने अमीर हो गए। उस बच्ची ने कहा, हमें इस बारे में मालूम नहीं, मेरे वालिदैन से इस बारे में पूछो। उस औरत ने जब ये बात सुनी, उसकी माँ से पूछी तो वो बोली, अगर तुम लोग हसद की जगह शुक्र करो तो ज़्यादा बेहतर होगा। मगर लोग कहाँ किसी की सुनने वाले थे। उन्होंने अब इस बात को अना का मसला बना लिया था। जैसे तैसे दिन गुजरे तो सारे मोहल्ले ने उन लोगों को तन ताना देकर आपदीदा कर दिया। वो लोग अब घर तक महदूद रहते थे। अचानक ही मोहल्ले में एक बात फैल गई कि ये लोग कोई गलत काम कर रहे हैं, इसलिए सब ने ये फैसला किया इन लोगों को मोहल्ले में नहीं रहने देना। इस फैसला पर अमल करते हुए लोगों ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। काफ़ी देर तक जब किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला तो लोग तशवीश में मुब्तला हुए। लोगों ने दरवाज़ा फलांग कर घर के अंदर गए। अंदर का मंजर देखकर लोगों के रूंगटे खड़े हो गए। सबको लगा कि अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ है। मगर इस बच्ची ने अपनी माँ के अध मुर्दे वजूद के पास रोते देखा और डॉक्टर को बुलाया तो उसने बताया कि इसके आधे वजूद पर फालिज हो गया है। अगर वक्त पर दवा ना मिलती ये तो मफलूज हो जाती। ये बात सुनकर लोग आपस में चमगोइयाँ करने लगे। ये सब इसी का अमल का असिला है जो ये लोग कर रहे हैं। वो मासूम बच्ची और उसकी गहरी सुरमई आंखों में एक बेचैनी थी। साथ ही उस औरत का शोर चारों तरफ देख रहा था। सब लोग आहिस्ता आहिस्ता बातें करते हुए चले गए। इस घर में अभी तक सन्नाटा छा गया। कोई रात के दूसरे पैर छत टपक कर घर में आया, मगर उसकी चाल से नहीं लग रहा था कि वह चोर है। बेधड़क वो उस घर में चला गया, लाइट जलाई, खाना खाया और ऊपर की मंजिल पर जाकर सो गया। मालूम नहीं किस वक्त वो गया। ये रोज़मर्रा का काम था, आना, खाना खाना और चले जाना। मोहल्ले के एक बुजुर्ग ने यह सब देखा तो सब लोगों को बताया, मगर लोगों ने फौरन इस बात पर यकीन कर लिया। वो लोग तो पहले उस घर के पीछे थे। कोई भी चिंगारी उस घर को जलाने के लिए बहुत थी। अगले दिन सब लोग मोहल्ले वाले उस घर का मुहासरा कर रहे थे। उस घर के मकीन अब घर तक महदूद हो गए थे। वो लोग कमज़ोर नहीं थे, मगर उनके मुकाबले के लिए हिम्मत से ज़्यादा वक्त दरकार था, जो कि कुछ नामालूम सा लग रहा था। पूरा दिन लोग यहाँ से वहाँ चक्कर लगाते रहे। रात देर तक कोई भी नहीं आया। लोग वापस अपने घर की तरफ चले गए। एक अक्स फिर से उस घर में दाखिल हो गया। उस सुरमई रंग वाली बच्ची ने यह सब बहुत गौर से देखा। रोज़ यही होता था। कौन मजबूर था। ये सब इतना मामूली नहीं था। किसी की आबरू ऊपर थी। वो बीमार औरत एक जगह पड़ी पड़ी किसी गहरी सोच में मुब्तला थी, मगर उस बच्ची की नज़रों में तशकर था। वो बच्ची घर के दरवाजे में खड़ी उस बुजुर्ग को देख रही थी। उस बुजुर्ग ने बच्ची को अपनी तरफ आने का इशारा किया। वो बच्ची कुछ सोचते हुए आगे बढ़ी, मगर फिर वही रुक गई। बुजुर्ग की एकदम आंखें बुझ गईं। वो बुझी वापस घर में चली गई। बुजुर्ग उलझन में मुब्तला हो गया था। एक चिंगारी थी जिसने कहानी को एक अलग ही रंग दे दिया था। बुजुर्ग अब ताने बाने जोड़ने लगा। वो बच्ची घर में ही खिड़की खड़ी रहती थी, ना कोई सहेली, ना कुछ, ना ही किसी बच्चे के साथ खेलती थी। पता नहीं क्यों वो हर वक्त अपने लब से खड़ी थी। पता नहीं क्या देख रही थी। बुजुर्ग ने चाह के उस बच्ची से बात करे, मगर वो सब मुमकिन था। वो शख्स जो रात में उस घर में आता है, शायद ये सब उस शख्स का खौफ था। वो जो ये बच्ची, उसके घर वाले पूरे मोहल्ले से अलग थलग थे। क्या था जो कि उस सब को अलग करके रखे हुए था। इतनी अमीरी दौलत का क्या फ़ायदा जिससे अपने इर्द गिर्द के लोगों की बूझ लगे। बुजुर्ग ने एक तरकीब लगाई। उसने दुकान से एक गुड़िया ली और शाम का इंतज़ार करने लगा। जैसे तैसे रात हो गई, मगर वो बच्ची दरवाजे पर नहीं आई। बुजुर्ग प्यासी नज़रों से उसका मुंतज़िर था। एक दिन, 2 दिन, मगर वो बच्ची मानो गायब हो गई। बुजुर्ग ने अब उम्मीद करना छोड़ दी थी, मगर इस बार कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। वो बच्ची घर की दहलीज से बाहर निकली और गली में गेंद से खेलने लगी।
बुजुर्ग ने जल्दी से उस बच्ची को अपनी तरफ मुतवज्जा करना चाहा, मगर बच्ची गेंद को साथ खेलने में इतनी मगन थी उसने कुछ देखा ही नहीं। अचानक गेंद घूमती उस बुजुर्ग के हाथ में जाम गिरी। बच्ची जैसे ही उस गेंद जाने जाने लगी, अचानक उसकी नज़र अपने घर की जानिब गई और वह गेंद को वहीं छोड़कर अंधाधुंध अपने घर की तरफ भाग गई। बुजुर्ग ने वो गेंद उठाकर अपने पास उसी जगह पर रख ली जहां वो गुड़िया रखी हुई थी। बुजुर्ग को यकीन था कि वो बच्ची दोबारा ज़रूर आएगी, इस उम्मीद पर, मगर यह सब नामुमकिन था। बुजुर्ग अपनी मंतक बनाने में यह भूल गया कि वक्त बदलने में देर नहीं लगती। यह जो वो समझ रहा था कि मंजिल करीब है, इस बात से अनजान था कि अगला वक्त उसका तजर्बा और तरकीब खाक में मिलाने वाला था। वापस बैठकर उस घर को तकने लगा। बच्ची ने ना ही आना था और ना ही वो आई। बुजुर्ग को गैर दानिस्ता तौर पर वो सब याद आया, कैसे एक ही रात में सब बदल गया है, जैसे कौंसलर की जिंदगी यानी कि ये सब वहम नहीं था। लोगों से जितना सुना, बूढ़े सहन ने वही दिमाग में बिठा लिया और खुद ही खुद ताने बाने जोड़ने लगा। मगर इस सब में एक कड़ी न जाने कहाँ हो गई थी। शायद वो नहीं ये बस एक सहरा में शराब का मानद था। बुजुर्ग ने सोचा क्यों ना इस बात की तह तक जाया जाए। इसके लिए किसी एक इंसान से गुफ्तगू करनी होगी जो कि हर सवाल के जवाब से वाकिफ़ है और वो लबों पर कफन लगाए बैठा है। मगर कौन भरे मोहल्ले में ऐसे कौन है जो बात फिलहाल बुजुर्ग नहीं जानता था। इस सब को वक्त दरकार था, लेकिन यह देर बहुत देर से आई। उस रोज़ अचानक उस बुजुर्ग बाबा ने बैठे बैठे सोचा क्यों ना कौंसलर के घर का चक्कर लगाया जाए, चहलकदमी भी हो जाएगी। उसी सोच पर अमल करते हुए वो अपनी मंजिल से निकल पड़ा। कौंसलर के घर को दूर से ही देखकर लगता था कि यहाँ उदासी और वैरानी ने अपने पंजे गाड़ लिए हैं। बुजुर्ग बाबा ठंडी आह भर के घर के अंदर दाखिल हो गया। शायद काफ़ी दिनों बाद कोई इस दहलीज पर आया था। वहाँ के चरिंद परिंद और इंसान सब खामोशी का लिबादा ओढ़े बैठे थे। कौंसलर ने बुजुर्ग को एक नज़र देखा और फिर दूसरी सिमत किसी गैर मियारी नुक्ता को देखने में महव हो गया, जबकि कौंसलर की बीवी ने गलत नज़र भी बुजुर्ग पर नहीं डाली। यह देखकर उस बुजुर्ग आदमी का दिल और टूट गया। कैसे जीते जागते इंसान जिंदा लाश बने हुए थे। कौंसलर के बराबर में बैठे हुए बुजुर्ग ने अभी कुछ कहना ही चाहा था, जब अचानक कौंसलर की बीवी पागलों की तरह चिल्लाने लगी। वह जोर जोर से नफ़ी में सर को जंबिश दे रही थी। बार बार वह बुजुर्ग को देखकर हाथ जोड़ती और नाम में गर्दन हिलाती। उसकी आंखों में एक अनजाना खौफ था, एक बेचैनी थी। आंसू तो मानो सूख गए थे, मगर वह बस अपनी धुन में थी। लोग शोर शराबा सुनकर आ गए। बुजुर्ग ने देखा तो पल भर को घबराया, मगर फिर कौंसलर को देखा जो कि वैसा ही बैठा था। बुजुर्ग को यकीन हो गया कि यहाँ आना इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। इनसे मदद मांगनी चाहिए जो कि खुद मदद के तलबगार हैं। सब ने बुजुर्ग को ही कहा कि बाबा क्या ज़रूरत थी उस घर जाने की। एक बीबी बोली कि उस घर में अब जिन्नात रहते हैं, उन्होंने कौंसलर के बेटे को मारा और अब उस घर में किसी को नहीं आने देते। बुजुर्ग सबकी बातें सुन रहा था। कोई कह रहा था कि कौंसलर की बीवी पहले मगरूर थी, अल्लाह ने ऐसे दिखाया कि दौलत के पर इतना घमंड अच्छा नहीं होता, बस कुछ पैसा नहीं होता है। मगर बुजुर्ग खामोश था। उसकी नज़र अचानक अपने हाथ पर गई। उसने मुड़कर कौंसलर के घर की तरफ देखा। उसका मतलब नहीं, ऐसा कैसे मुमकिन है। शायद कौंसलर की बीवी का दिमागी तवाज़ुन वाकई ख़राब हो चुका है, इसलिए वो ऐसी हरकतें कर रही है, वरना एक बेजान चीज़ से डर बेजान। ये तो उस बुजुर्ग की सोच होगी, शायद इस मंतक से परे थी। वो हकीकत जो भयानक थी बुजुर्ग के लिए नहीं, मगर शायद इस औरत के लिए सब कुछ साफ था। एक लकीर, मगर सांचा अभी नामुकम्मल था। शायद कड़ी को जोड़ना ही सही है, असल वजह ये गुड़िया है। बुजुर्ग ने जैसे सबके कानों में शीशा अंडेल दिया। सब लोग एक मिनट के लिए खामोश हो गए और फिर बोले, अरे बाबा क्यों सांप जाने के बाद लकीर पीट रहे हो, समझ क्यों नहीं रहे। ये सब होना था, ये कौंसलर और उसकी बीवी का नसीब था। क्यों अपनी बूढ़ी जान जो हलकान कर रहे हो। बुजुर्ग को कुछ नहीं बोले और सब अपने अपने काम को चल दिए। वो वहीं बैठे उस बंद घर को तक रहे थे, जैसे मानो अभी वो बच्ची बाहर आएगी। मगर उस बच्ची ने कभी दोबारा उस बाबा के सामने ना आने की कसम खा रखी थी। बाबा भी बस एक ही धुन में थे, कौंसलर की बीवी ने ऐसा क्यों किया। उस गुड़िया को देखकर वो अपना आपा खो बैठी। कुछ तो था जो समझ से बाहर था। एक मामूली बेजान सी गुड़िया, क्यों कौंसलर की बीवी जो डर गई। ये कोई आम बात नहीं थी। शायद इस बात के पीछे कोई बड़ी कहानी है जिसकी खबर किसी को नहीं है।
है। बुजुर्ग अपनी बात पर कायम थे। वो इस गत्थी को सुलझाना चाहते थे मगर कोई भी ऐसी कड़ी हाथ नहीं आ रही थी जिससे ये सब सुलझ जाए। बुजुर्ग ने शुरू से सारी बात दोहराई, शादी वाकया, बच्ची गेंद, वो अक्स, कौंसलर, उसकी बीवी, बच्ची की माँ का फालिज, उन सब का गुरेज, कौंसलर का बुत बना, इसकी बीवी का पागलपन, घर में खामोशी, सब एक ही चीज़ थी जो दोनों घरों में अजीब थी। खामोशी, कौंसलर तो अब खामोश था मगर वो बच्ची, उसका घर, उसके माँ बाप भी तो बहुत कम गो थे। कौंसलर के घर तो क़यामत गुजरी थी इसलिए वो चुप था मगर क्यों गम था जो ज़िंदगी से नाराज़ हो जाना कहाँ की अक्ल थी। बुजुर्ग ने कौंसलर के दरवाजे के आगे जाकर उसको आवाज़ लगाई। कौंसलर आ गया तो बुजुर्ग ने कहा, मैं जानता हूँ यह तूफ़ान से पहले की खामोशी से, मुझे इस तूफ़ान का नाम बताओ। मैं जानता हूँ सब मगर एक बार तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ। कौंसलर हकारत से बुजुर्ग को देखते हुए बोला, जा बूढ़े, क्यों बच्ची हुई ज़िंदगी भी आग बनाना चाहता है। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, यानी मैं सही था, तू भी जानता है इस बात का इकरार करना तुझे जला देगा मगर याद रख, ये डर पूरे इलाके में फैल गया तो तेरे घर जैसी खामोशी होगी चारों तरफ और इसका जिम्मेदार तू ही होगा। बुजुर्ग ये बातें कहकर चला गया। बुजुर्ग को बैठे हुए अभी कुछ देर गुजरी थी कि कौंसलर उसके सामने आ धमका। बुजुर्ग ने हैरत से कौंसलर को देखा जो कि बुजुर्ग को घूर रहा था। बुजुर्ग कुछ कहता इससे पहले ही कौंसलर उसकी जानिब सियाह छापर उछाल कर वापस वहीं चला गया जहाँ से आया था। बुजुर्ग ने एक नज़र कौंसलर को देखा और दूसरी नज़र उस छापर को। कुछ सोचते हुए बुजुर्ग ने वो छापर खोला मगर अंदर एक सुर्ख रंग की डायरी देखकर वही दंग रह गया। ये डायरी किसकी थी और ये कौंसलर मुझे क्यों दे गया? बुजुर्ग ने वो डायरी खोली और उसके पहले सफ़ा पर हाथ फेरने लगा। बुजुर्ग सही था, ये डायरी कौंसलर की बीवी की थी। बहुत खूबसूरती से लिखे गए जुमलों में बेटे का ही जिक्र था। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे बेटे का रिश्ता तय होने जा रहा है। हर माँ की तरह मेरी भी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरे बेटे की बहू प्यारी हो और जो रब को मंजूर मेरी होने वाली बहू प्यारी है मगर वो बहुत कम गो है। मेरा गुमान था कि अकलौते बेटे की शादी के बाद उसकी बीवी से खूब बातें करूंगी मगर यहाँ तो बहू की कम गोई है। मगर खैर ये कोई वजह नहीं। तकरार की अगले सफ़ा पर लिखा था, 1 महीना में शादी है मेरे बेटे की। लड़की वाले तो मंगनी पर राजी नहीं थे और अब चाहते हैं कि चट मंगनी चट ब्याह हो जाए। ऐसी भी क्या जल्दी है, इतनी ख्वाहिशें थी मेरी मगर क्या करूं, बहू के घर वालों ने ये कहकर सब चीज़ों से मना कर दिया कि ये सब उन्हें पसंद नहीं। अगले सफ़ा पर लिखा था कि आज मैं बहू के घर शादी के जोड़े का रंग पूछने गई मगर वहाँ का मंजर देखकर मुझे बहुत कुछ अजीब लगा। शादी में 1 हफ्ता भी नहीं रहा और उस घर में ना कोई चहलकदमी, ना कोई रस्म, ना कोई शोर, ना कोई मेहमान। मुझे अजीब लगा। मैं पूछे बिना नहीं रह सकी कि आखिर ऐसा भी क्या सादगी हो गई। ना कोई रौनक, ना कुछ अर्रे। अकलौती बेटी की शादी थी भाई, मगर उन लोगों ने टिक्का सा जवाब दिया कि उन्हें इन सब में दिलचस्पी नहीं, बस फ़र्ज उतर जाए बहुत है। मैं अपना मुंह से लिए वापस आई। कौंसलर जी से मैंने इस बात का जिक्र किया तो उन्होंने कहा, हर इंसान की अपनी तबीयत होती है, हमें जो पसंद है हम वो करेंगे, उन्हें जो पसंद है वो करें। अरे अब देखो ये कोई बात है, मुझे लिखना अच्छा लगता है, ऐसा करने से मन का बोझ हल्का होता है। बहू के आने के बाद शायद ना लिख सकूं, इसलिए अब कोशिश करती हूँ कि वक्त पर डायरी मुकम्मल करूँ। अब काम है, बाद में लिखूँगी। बुजुर्ग ने और भी रवानी से डायरी पढ़ी। अगले सफ़ा पर लिखा था, आज तो मेरे चांद मेरे बेटे की घोड़ चढ़ी है। इस दिन का मुझे बहुत शिद्दत से इंतज़ार था, मेरा शहजादा बेटा। मगर इसके ससुराल वाले इस रस्म में भी बस मेहमान बने रहे। मगर हमें क्या, शायद कौंसलर जी सही कहते थे, ये जो पैसे वाले लोग होते हैं ना, इनका रवैया ऐसा ही होता है। मैंने अपनी बहू के लिए खाना भेजना चाहा मगर उन लोगों ने कहा वो ये सब नहीं खाती। मैंने अब की बार तो अपनी बहू की माँ कह दिया कि बहन के क्या बात हुई, हमारा कुछ तो मान रख लो। अगर आपकी बेटी नहीं भी खाती, हमारा दिल रखने के लिए जाए। बहू की माँ ने कहा, बहन नाराज़ ना हो मगर मेरी बेटी की तरबियत मैंने ऐसी की है कि वो सादा खाने पसंद नहीं करती। उस दिन भी बात बस रफा दफा हो गई। मैंने तो अपने बेटे की शादी के
चाव पूरे करने में लगी थी। इस घड़ी को मुंतज़िर थी जब मेरी आंखों की ठंडक मेरे बेटे का घर बसता देखूंगी। आज तो मेरे बेटे का मायों था। इतना काम है, समझ नहीं आ रहा कैसे करूं सब। कौंसलर जी तो इन गरीब मोहल्ले वालों को ही बुलाते हुए नहीं थक रहे थे। मैं तो अपनी बहू को देखने का इंतज़ार कर रही थी। वो बहुत हसीन है, गहरी आंखों वाली, भूरे बाल, खामोश लब और लब के पास स्याह तिल, सुनहरी बाल है। बेशक वो हसीन है मगर वो खामोश है। इस दौर की लड़की होकर भी वो क्यों है ऐसी। अब नया मसला भी चाहती थी कि बहू और बेटी की तस्वीर एक अंदाज में हो, इसलिए कैमरे वाले का बहू के घर भेजा। उन लोगों ने यह कहकर वापस भेज दिया बहू को फ़ोटो बनवाना पसंद नहीं है। मरते क्या न मरते, इस बात को भी हामी ही पी गए। अगले दिन तो आन पहुंचा। मैं सज संवर कर अपने बेटे को उसके दोस्तों के साथ छोड़ आई। वो बहुत खुश है और मैं भी। एक तो अकलौते बेटे की शादी इतने अमीर घर में हो रही है, ऊपर से मेरा बेटा भी खुश है। बहू भी तो गुड़िया जैसी मिली है। चिराग लेकर भी ढूंढने निकलती तब भी ऐसी नहीं मिलती। यह तो मुकद्दर का सितारा चमका और मेरी बहू के बाप से कौंसल जी की रोड पर मुलाकात हो गई। बातों बातों में घर आने की दावत दी और आनन फाना रिश्ता हो गया। अपनी बहू का नाम लिखना तो भूल गई गुड़िया। हाँ, नाम ही भी गुड़िया और देखने में भी गुड़िया ही लगती है। बस ये वक्त जल्दी ही गुजर जाए, इससे आगे सफ़ा खाली थे। बुजुर्ग साहब ने अपनी पेशानी पर आया पसीना साफ किया और डायरी वापस उस स्याह छापर में रख दी। कौंसलर ने इस कहानी की आखिरी कड़ी इस दीवार पर पहुंचा दी जिसको गिराकर बुजुर्ग अब इस पहेली को सुलझाने वाले थे। सब कुछ एक लफ्ज़ में आकर रुक गया। गुड़िया बुजुर्ग ने अब अपनी लाठी उठाई और दूर दरख्त पर चढ़कर गांव वालों को आवाज़ दी। सब लोग उसके इर्द गिर्द जमा हो गया तो बुजुर्ग से बोले, क्या बात है, क्यों सबको यहाँ इकट्ठा किया है। इस पर बुजुर्ग ने कहा, अहमक लोगों, तुम सब अपनी अपनी मस्जिद बनाकर बैठे हो। कहाँ के इंसान हो, कहाँ है तुम्हारी अकल जिसकी वजह से रब ने तुम्हें अशरफ का लक़ब दिया। सब लोग बोले, बाबा क्यों फजूल में वक्त ख़राब कर रहा है, इस उम्र में सटिया गया है। बुजुर्ग ने कहा, मैं तो नहीं मगर तुम लोग ज़रूर सटिया गए हो। एक औरत ने कहा, बाबा जो बात है वो बता, क्यों नहीं देते, इतनी तमीज़ क्यों बांध रहे हो। इस बात पर उस बुजुर्ग ने कहा, याद तो होगा, ज़्यादा पुराना किस्सा नहीं, यही कि एक घर में औरत, बच्ची और बाप था जो अमीर हो गए थे। सब लोगों ने कहा, हाँ याद है। तो बाबा ने कहा, वो बच्ची याद है। उसमें से एक बच्ची ने कहा, हाँ बाबा वही सुरमई आंखों वाली। बुजुर्ग ने कहा, हाँ वही, उसके पास हर वक्त एक गुड़िया रहती थी। जबकि वो लोग तो इतने गरीब थे कि एक वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से खा पाते थे। वो गुड़िया उस बच्ची के पास कहाँ से आई। बुजुर्ग के सवाल पर बच्ची ने कुछ सोचते हुए कहा, बाबा एक दिन वो कचरा चुन रही थी तब उसको वो गंदी सी गुड़िया मिली थी। इस बात पर बाबा ने कहा, हाँ वो गुड़िया उसको कचरे के ढेरे से मिली थी और सबसे बड़ी बात वो गुड़िया बहुत गंदी थी, यानी कीचड़ में ही कमल खिलता है। ये बात सुनकर एक उधेड़ उम्र का आदमी बोला, अरे बाबा क्या गुड़िया की कहानी सुना रहा है, बात बता क्यों नहीं देते। बुजुर्ग बाबा ने कहा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। उस दिन जब वो बच्ची उस गुड़िया को अपने घर ले गई तो उसने सोचा इस गुड़िया को साफ करूं। जैसे ही उस बच्ची ने गुड़िया को धोया तो उसके पोछ से हीरों की थैली मिली। वो गरीब मुफलिस लोग हीरों को पत्थर समझने लगे और एक तरफ फेंक दिए। मगर एक दिन कौंसलर उनके घर गया जमीन की बात करने। उनकी नज़र हीरों पर गई। उसने एक नज़र में ही पहचान लिए। उस गरीब आदमी को 10% देकर बाकी सब कौंसलर ने हथिया लिया। मगर इस बच्ची ने दिमाग में यह बात अड़ गई। वो रोज़ कौंसलर के घर जाती और उससे कहती कि उसने उन्हें पैसे क्यों दिए, जिस पर कौंसलर पहले तो जवाब ना देता और बच्चे को टाल मटोल देता। मगर जब बच्ची की जिद देखी तो उसको फिक्र लाख हुई। कौंसलर ने लालच की जिद में आकर उस घर को ख़त्म करवा दिया। मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। उस बच्ची ने बस गुड़िया की पुछ धोई थी, जबकि सर के हिस्से से उससे भी ज़्यादा हीरे बरामद हुए। वो लोग न जाने कहाँ चले गए जहाँ कौंसलर का वक्त बुलंद हुआ। मगर ये अरूज ज़्यादा अरसा रहा। दूसरी तरफ हीरों का मालिक जो कि एक डाकू था, वो हीरे जो जवाहरी से चुरा लाया था। अपने हीरो की तलाश में आग बगोला हो रहा था। किसी तरह उसे इल्म हुआ कि कौंसलर ने दिनों में अरूज हासिल किया। उसको शक हुआ मगर कोई डोर ना मिली। दूसरी तरफ वो लड़की जवान दोशेज़ा बन गई और नसीब जुड़ा भी तो कौंसलर के बेटे से, मगर कौंसलर नहीं पहचान सका। अगर पहचान जाता तो उसका ज़वाल कैसे मुमकिन था। बारात की सुबह उस डाकुओं ने अपने हीरो का मुतालबा कौंसलर
किया, जो कि ये बात सुनकर घबरा गया और साफ इनकार कर दिया। ये बात डाकू को हजम नहीं और उसने गुस्से में काउंसलर के बेटे को मार दिया। ये वही डाकू था जो रोज रात उस घर में आता था, मगर उसके आने का मकसद अपने हीरे मसूल करना था, जो कि अब नामुमकिन बात थी। बुजुर्ग के खामोश होते ही उसने लोगों की तरफ देखा जो मानो पत्थर के हो गए थे। ये हकीकत वाकई बहुत भयानक थी। क्या एक दौलत के लिए काउंसलर ने अपना बेटा खो दिया? दूर से ही काउंसलर की बीवी तालियां बजा रही थी, जैसे उसको ये कहानी बहुत पसंद आई हो। बाबा से लोगों ने पूछा कि ये सब आपको किसने बताया? तो बाबा ने कहा, मुझे इस बात पर बहुत ताज्जुब था कि कैसे मर सकता है, कैसे लोग अमीर हो सकते हैं। ये तजस्सुस मेरा काउंसलर की बीवी को देखकर यकीन में बदल गया। वो औरत काउंसलर को एक नज़र तक नहीं देख रही थी, जैसे उसको काउंसलर पर बहुत गुस्सा हो। इस गुस्सा की वजह उसका जवान बेटा था, जो कि उससे बिछड़ गया था। मैंने काउंसलर के सोए हुए समीर को सब हवा दी और बाकी उसने ये सब मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। लोगों ने पूछा, तो वो लड़की कहाँ है? इस पर बुजुर्ग ने जवाब दिया, इसका इल्म नहीं वो कहाँ है, किस हाल में है। बस एक कसक है कि हम लोग अपनी मन तक ही मानते रहे, ये नहीं समझ पाए कि हर तस्वीर की तरह इसके भी दो रुख हो सकते हैं। या शायद हम लोगों में इतना हसद पैदा हो गया है कि हम ये देखना नहीं चाहते कि असल हकीकत क्या है। सब लोगों ने बुजुर्ग से कहा, आपने सही कहा, हम लोग दूसरों की गलती को गलती मान तो लेते हैं और अपनी बात को अगर कोई ओफ भी कहे तो नहीं मानते। ये शायद यही है, हमारी गलती का एहसास होता है। हमें समझना चाहिए कि सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा हम सोच लेते हैं। अपनी जगह हम ठीक होते हैं तो कोई दूसरा इंसान भी अपनी बात की वजह से ठीक होगा। बहस करना जहालत है और गलती मानकर खामोश हो जाना, इससे नसीहत लेना अक्ल है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल शौकत वाइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।